Hello students, welcome to our in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 9 video, we have already solved some question of integration. Now student, in part 10 video, we will solve question number 1, question number 3, question number 19, question number 25, question number 37 and question number 38 of exercise 7.2 of NCERT book, which is related to integration. And question number 1 is integration 2x upon 1 plus x square dx. मीन्स हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. नाउ सॉल्यूशन लेट कर लेना है. I is equal to इंटीग्रेशन 2x upon 1 plus x square dx. और यहां पर हम लोग जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं इसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व करेंगे. यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ इंटीग्रेंड के वैल्यू को t सपोज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सेट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. तो यहां पर स्टूडेंट हम लेट कर ले रहे हैं 1 plus x square is equal to t. दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. तो यहां से हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x. दिस इज इक्वल टू dt by dx. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, ये हो जाएगा 2x dx. दिस इज इक्वल टू dt. दिस इंप्लाइज दैट I is equal to integration 2x dx means dt upon t. This implies that I equal to integration dt upon t means log mod t plus c. I equal to log in modulus value of t is 1 plus x square plus c. This is required solution. Now student, we will solve question number 3 of exercise 7.2. Question number 3. Let I is equal to integration 1 upon x plus x log x dx. This implies that I equal to integration 1 upon x कॉमन कर लिया जाएगा डिनोमिनेटर में से, तो जाएगा x into 1 plus log x dx. Let 1 plus log x is equal to t. Differentiating both sides with respect to x, then we get 1 upon x equal to dt upon dx. This implies that 1 upon x dx is equal to dt. Then we write I is equal to integration 1 upon x dx की जगह पर हम लिख लेंगे dt upon 1 plus log x की जगह पर लिख लेंगे t. This implies that I equal to log in modulus t plus c. t की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, तो जाएगा log in modulus value of t is 1 plus log x plus c. This is required solution. Now student, we will solve question number 19 of exercise 7.2. Question number 19. Solution. Let I is equal to integration e raised to the power 2x minus 1 upon e raised to the power 2x plus 1 dx. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन हम अरेंज करते हैं. इसे हम कर क्या रहे हैं, e पे पावर x न्यूमरेटर से कॉमन कर दे रहे हैं और e रेज़ टू द पावर x डिनोमिनेटर से. अगर हम e रेज़ टू द पावर x न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे, ये e रेज़ टू द पावर 2x है, मींस e रेज़ टू द पावर x का होल स्क्वायर है. तो यहां हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x minus 1 upon e रेज़ टू द पावर x अपॉन डिनोमिनेटर्स भी कॉमन करेंगे, तो e रेज़ टू द पावर x हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x into e raised to the power x plus 1 upon e raised to the power x dx.
e raised to the power x, e raised to the power x डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e raised to the power x minus 1 upon e raised to the power x means e raised to the power minus x upon e raised to the power x plus e raised to the power minus x dx. Let e raised to the power x plus e raised to the power minus x equal to t. एक बात याद रखना है स्टूडेंट, t हम उसी को सपोज करते हैं जिससे हमें बेनिफिट मिले, मींस इंटीग्रैंड के कुछ टर्म एलिमिनेट हो जाए dx के साथ, तभी हम t सपोज करते हैं। उसी को t सपोज करेंगे जिससे हमें बेनिफिट मिले। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो आएगा ये e रेज़ टू द पावर x, ये हो जाएगा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू dt अपॉन dx. दिस इंप्लाइज दैट e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t. This is equal to log in modulus t plus c. This equal to log in modulus value of t is e raised to the power x plus e raised to the power minus x plus c. This is required solution. Now student, we will solve question number 25 of exercise 7.2. Question number 25. Solution. Let I is equal to integration 1 upon cos square x into 1 minus tan x whole square dx. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 upon cos square x means sec square x upon 1 minus tan x होल स्क्वायर dx. अब स्टूडेंट यहां हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम sec x को t सपोज करते हैं तो ये tan वाला पोर्शन है जो डिनोमिनेटर का एलिमिनेट नहीं होगा। sec स्क्वायर x को t सपोज करते हैं तो भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो यही रीजन है हम यहां पर लेट करेंगे 1 minus tan x इक्वल टू t. दिस इंप्लाइज दैट दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 1 का 0, ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx. दिस इंप्लाइज दैट dx, या ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू माइनस साइन यहां बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx की जगह पर माइनस dt लिखेंगे तो माइनस हम बाहर लिख लिए हैं और ये हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर. अब इसी को सिंपलीफाई किया जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन t रेज़ टू द पावर माइनस 2 dt. I इक्वल टू माइनस t रेज़ टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, सिंपलीफाई करेंगे माइनस 2 प्लस 1 प्लस c. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू डिनोमिनेटर में माइनस 2 प्लस 1 है तो माइनस 1 होगा और माइनस यहाँ पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा t रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस c. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस c. t की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस c. दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो यह सॉल्यूशन आ गया 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस c. नाउ स्टूडेंट, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्यूशन. लेट कर लेना है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब साइन
tan इनवर्स x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 8 dx। अब स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में अगर हम यहां को सपोज करते हैं t, तो ये इजीली नहीं एलिमिनेट होगा, मींस इंटीग्रैंड का टर्म इजीली एलिमिनेट नहीं होगा। हम यहां लेट कर ले रहे हैं tan इनवर्स x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 का होल स्क्वायर d बाई dx, x रेज़ टू द पावर 4 चेन रूल से डिफरेंशिएशन किए हैं, दिस इक्वल टू dt अपॉन dx, दिस इंप्लाइज दैट d by dx x raised to the power 4 means 4x cube, 4 into x cube upon 1 plus x raised to the power 8 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो dx, this is equal to dt। यहां से स्टूडेंट अरेंज कर लिया जाए सही से तो जाएगा ये x cube dx upon 1 plus x raised to the power 8, दिस इज इक्वल टू, अब यह जाकर के डिवाइड होगा इधर तो जाएगा dt अपॉन 4 x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 8 dx की वैल्यू आ गया dt अपॉन 4। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 8 की जगह पर हम लिख लेंगे dt बाई 4 लिखेंगे, अब इसको किनारे लिखेंगे और ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स x रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू है t और x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 8 की जगह पर dt अपॉन 4। This implies that I equal to 1 by 4 integration sin t dt, I equal to 1 by 4 into integration sin t dt means minus cos t और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लिख लेंगे प्लस c, दिस इक्वल टू minus 1 by 4 cos t plus c, this equal to minus 1 by 4 cos value of t is tan inverse x raised to the power 4 plus c, this is required solution। Now student we will solve question number 38। सॉल्यूशन लेट कर ले रहे हैं I is equal to integration 10 into x raised to the power 9 plus 10 raised to the power x log 10 base e upon x raised to the power 10 plus 10 raised to the power x dx। अब स्टूडेंट यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। अगर हम न्यूमरेटर को t सपोज करेंगे तो कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम डिनोमिनेटर को t सपोज करेंगे, यहां लिख लेंगे लेट x raised to the power 10 plus 10 raised to the power x is equal to t। कैसे हम जाने हैं कि डिनोमिनेटर को ही सपोज किया जाएगा, न्यूमरेटर को नहीं, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x रेज़ टू द पावर 10 का तो आएगा 10 into x रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 10 रेज़ टू द पावर x log 10 बेस e। यही रीजन है कि हम डिनोमिनेटर को t सपोज किए हैं। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 10x raised to the power 9 plus ये हो जाएगा 10 raised to the power x log 10 base e, this is equal to dt upon dx। This implies that 10 into x raised to the power 9 plus 10 raised to the power x log 10 base e dx is equal to dt। This implies that I equal to integration, अब हम इसके जगह लिख लेंगे dt अपॉन और इसकी वैल्यू है t, दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t मींस log मॉडुलस t प्लस c, और यहां पर हम
t की वैल्यू पुट कर लेंगे। t की वैल्यू है x रेज़ टू द पावर 10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड solution. Now dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.